اور اس دنیا میں ہر شخص چاہے غریب ہو یا امیر ہو، پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو، شہر کا رہنے والا ہو یا کسی دیہات میں بسنے والا، ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ایسا کسی شخص سے رابطہ ہو، تعلق ہو جو مصیبت کے وقت اور تکلیف کے وقت میں اس کے کام آ سکے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ یہ ہر شخص کی خواہش ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کسی ایسے شخص سے میرا ربط ہو، تعلق ہو، دوستی ہو، شناسائی ہو، جو مصیبت کے وقت اور تکلیف کے وقت میں میرے کام آ سکے، اور جو مصیبت کے وقت میں کام نہ آئے، تکلیف کے وقت میں ساتھ چھوڑ جائے، وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ دوست وہی ہے، دوست آں باشد کہ گیرت دست دوست، وقت پریشانی اور درماندگی۔ فرمایا دوست وہ ہے جو مصیبت کے وقت ہاتھ پکڑے، تکلیف کے وقت مدد کرے، پریشانی کے وقت کام آئے۔ اگر مشکل کے وقت میں کام نہیں آ سکتا، اگر تکلیف کے وقت میں وہ مدد نہیں کر سکتا، اگر دستگیری نہیں فرما سکتا اور نہیں کر سکتا، تو یقین فرماؤ وہ وفادار نہیں، وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ کیا بات۔ وفادار دوست وہی ہوگا جو مصیبت کے وقت میں کام آئے، جو تکلیف کے وقت میں کام آئے۔ آپ دیکھیں کہ آپ غور فرمائیں، توجہ کریں کہ کوئی ایسا آپ کو کہیں دکھائی دے رہا ہے جو آپ کے مصیبت کے وقت میں کام آئے اور تکلیف کے وقت میں آپ کی مدد کرے اور مشکل وقت میں آپ کا ہاتھ پکڑے؟ اگر آپ غور فرمائیں گے تو ایسا کوئی شخص ملے گا، کیونکہ ایک وقت مصیبت کا ایسا آنے والا ہے ہر انسان پر، تکلیف کا وقت آنے والا ہے، مشکل وقت آنے والا ہے کہ دنیا میں دوست کہلانے والے، دنیا میں مددگار کہلانے والے، دنیا سے میں تعلق رکھنے والے ایک ایک کر کے چھوڑ جائیں گے، کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا، کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا۔ دیکھو میں عرض کروں کہ مشکل وقت قبر سے زیادہ اور انسان کے لیے اور کیا ہوگا؟ حضور مشکل وقت ہے کہ نہیں ہے؟ امتحان کا وقت ہے یا نہیں ہے؟ یقین فرماؤ وہ وقت مدد کا وقت کہ جہاں بھائی اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ جائے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ساتھ چھوڑ جائے گا، دوست دوست کو نہیں پہچانے گا، ساتھ کوئی نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، سوچو کہ ہمارا دوست کون ہے جو وہاں میں کام آئے گا، ہماری مدد کو کون پہنچے گا، اس مشکل وقت میں ہماری دستگیری کون فرمائے گا؟ ارے اللہ کے بندو، دوستی اس سے کرو جو مشکل کے وقت میں کام آئے، جو تکلیف کے وقت میں کام آئے۔ باپ تیرے ساتھ نہیں ہوگا، بھائی تیرے ساتھ نہیں ہوگا، دوست دنیا میں کہلانے والے چھوڑ جائیں گے، وہ تیرے ساتھ نہیں ہوگا۔ ارے اس ظلمت قدح میں، اس اندھیری قبر میں، تنگ و تاریک میں، ٹھیک ہے جی،
जो खौफ और डर का वक्त और मकाम है, कभी सोचा तूने कि वहां तेरी मदद के लिए कौन जलवागर होगा? सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान तेरे काम कौन आएगा? खुदाए दुल जलाल की कसम है, हम बाद में जाएंगे और बचाने वाला कमली वाला पहले जलवागर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, पहले जलवागर। नारे रिसालत, नारे खिलाफत, अजमत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अगर मैं उसकी गुलामी न करूं तो और किसकी गुलामी करूं? अगर उनका दामन न पकड़ूं तो और मैं किसका दामन पकड़ूं? कि जहां मेरा बाप मेरी मदद न कर सके, मेरा भाई मेरे काम ना आ सके, मेरे दोस्त मुझे छोड़ जाएं, मेरी जायदाद मेरे काम ना आए, मेरे ओहदे मेरे काम ना आए, वो न बचा सके, जिसने उस अंधेरी कब्र में मुझे बचाना है, उसकी गुलामी न करूं तो और किसकी करूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सुभान उनका दामन न पकड़ूं तो और किसका दामन पकड़ूं? ठीक है जी, इनसे ये वफा शुरू होती है। ठीक है जी, और जिस जिसके हाथ में उस कमली वाले का दामन आता है, यकीन फरमाओ फिर वफा वहां तक जाती है। ठीक है जी, वफा जाएगी, वफा करेंगे ये लोग, ये वफादार हैं, वफादार हैं। मैं डंके की चोट कह रहा हूं कि अल्लाह का रसूल वफादार है, ये अल्लाह के वली वफादार होंगे। ठीक है, हर मकाम पर वफा करने वाले, ठीक है जी, हमेशा मदद को आने वाले, हमेशा तकलीफ के वक्त अब मुश्किल कुशाई करने वाले, हमारे कोई माने न माने, हमारे मुश्किल कुशा, हमारे हाजत रवा, हमारे नासिर, हमारे मददगार तो यकीनन अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त और मोमिन। और फिर उनके साथ अगर थोड़ा सा ताल्लुक हो जाए तो मैं एक हदीस हमेशा बयान करता हूं, वो आपके सामने आज भी बयान कर दूं ताकि आपको याद हो जाए। अल्लाह के फरिश्ते हैं, बेशुमार हैं, उनमें एक ऐसे फरिश्ते भी हैं, एक जमात है जिनका नाम है सयाहीन, सयाहत करने वाले। वो जब सुबह होती है तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह हमें जमीन पर जाने की इजाजत फरमा दे, हम देखना चाहेंगे कि तेरे बंदे किस हाल में है, क्या करते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। अल्लाह से इजाजत लेकर आ जाते हैं। शाम होती है तो वो जमात अल्लाह से इजाजत लेकर जमीन पर आ जाती है और अल्लाह के बंदों के अमाल को देखना चाहते हैं और तलाश करना चाहते हैं कि खुदा वाले, खुदा का जिक्र करने वाले कहाँ मिले, कहाँ मिले। सुभान अल्लाह। ठीक है जी, उनको तलाश करने के लिए आते हैं, ढूंढते हैं। मेरे आका फरमाते हैं वो फरिश्ते जब जमीन पर आते हैं तो वो बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं, कोई मशरिक की तरफ, कोई मगरिब की तरफ, कोई शिमाल, कोई जनूब की तरफ, कोई इधर कोई उधर फिरते हैं। एक फरिश्ता कुछ तलाश करते करते, ढूंढते ढूंढते ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है कि जहां कुछ लोग इकट्ठे बैठे होते हैं, जमा होते हैं, और क्या हो रहा होता है? सिर्फ अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र। लोग बैठे हैं, जमा, इकट्ठे, जिक्र हो रहा है और जिक्र किया जा रहा है और जिक्र सुना जा रहा है। करने वाले कर रहे हैं और सुनने वाले सुन रहे हैं, बैठे हैं। वो फरिश्ता जब उस महफिल को देखता है, उन लोगों में आता है, तो वो फरिश्ता दूसरे फरिश्तों को बुलाता है, निदा करता है, आवाज देता है। क्या कहता है? हलुम्मु इला मकसदिकुम, ऐ फरिश्तों जिनको तलाश करने के लिए तुम आसमानों को छोड़कर आए थे, जमीन पर उतरे हो, जिन्हें ढूंढने के लिए तुम आए थे, जो तुम्हारा मकसद था, आओ इधर आओ, वो यहां पूरा हो रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
यहां पूरा हो रहा है। फरिश्ते आ जाते हैं, आकर नूरानी पर ऊपर उस आले महफिल के बिछा देते हैं, जिक्र होता रहता है, सुनने वाले सुनते रहते हैं। जब महफिल खत्म होती है तो वही फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में वापस जाते हैं। हालांकि अल्लाह सब कुछ जानता है, अल्लाह के इल्म में है, उसे कोई चीज मख्फी और पोशीदा नहीं है। फिर ज़ाहिर बातिन को जानता है, जरे जरे को जानता है, हर वक्त जानता है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला पूछता है, बताओ जमीन पर जो तुम गए थे, मेरे बंदों को किस हाल में तुमने देखा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालांकि खुद वो देख रहा है, क्या नहीं देख रहा? अल्लाह खुद जानता है, देख रहा है। अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। याद रखो, उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं है, उसके हर काम में हिकमत है। उसने सवाल करके और उनसे सुनकर फिर अपने बंदों की शान को ज़ाहिर फरमाना। फरमाया, मेरे बंदों को किस हाल में तुमने पाया? वो अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह फलां मकाम पर गए, ये हो रहा था, फलां पर ये, फलां ये। एक ऐसे मकाम पर गए हम जहां लोग इकट्ठे थे, जमा थे, तेरा जिक्र किया जा रहा था और कुछ लोग तेरा जिक्र सुन रहे थे। अच्छा, फरमाया जब महफिल खत्म की उन्होंने तो मुझसे कुछ मांगा भी, उन्होंने मुझसे सवाल भी किया। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि इलाहुल आलमीन, हाँ, उन्होंने ये सवाल किया कि ऐ अल्लाह, हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा और दोज़ख से महफूज फरमा, बचा ले। फरमाया यही मांगा? हाँ अल्लाह, जन्नत का सवाल किया और दोज़ख से बचने का तो इसे सवाल किया कि महफूज फरमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फरिश्तों, मैं एक ऐलान कर रहा हूं, तुम मेरे ऐलान पर गवाह बन जाओ। फरमाया वो क्या? फरमाया उस महफिल में जितने शरीक थे, मैंने सबको जन्नत दे दी। मैंने उन सबको जन्नत दे दी और दोज़ख से बचा लिया, महफूज कर लिया। फरिश्ते अर्ज करते हैं, अल्लाह, सबको तूने बख्श दिया, सबको तूने जन्नत दे दी, उनमें फलां 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 वो न तेरा जिक्र सुनने के इरादे से आया था, न जिक्र करने की नीयत से आया था, क्या उसको भी तूने बख्श दिया? ये बात है काबिल गौर जो मैं अर्ज कर रहा हूं। क्या उनको भी बख्श दिया? अल्लाह फरमाते हैं उनको भी बख्श दिया, सुभान अल्लाह। उनको भी बख्श दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह उन्हें क्यों बख्शा? फरमाया इसलिए कि मुझे बताओ, उस महफिल में कोई मेरा जिक्र करने वाला था कि नहीं था? कोई तो एक दो सुनने वाला था, करने वाला था। हाँ अल्लाह थे तो थे, तेरा जिक्र करने वाले लोग थे, सुनने वाले भी थे, मगर सारे नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरी याद करने वाले, मेरे दोस्त, मेरे वली, मेरा जिक्र करने वाले, उनकी शान ये है, उनकी शान ये है, हुमुल कौमो ला यशका जलीसहुम, उनके पास कोई बैठ जाए वो भी बदबख्त नहीं रह सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, कौम नारे रिसालत। हाँ,